السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے اپنے نئے دن کو۔ اور ہم آج آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں آپ کا فیوریٹ سلسلہ ناول کہیں پیار نہ ہو جائے کی ایپیسوڈ 21۔ اس سے پہلے کہ ہم ناول کو لے کر آگے بڑھیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور آئیکن بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے۔ تو چلتے ہیں ناول کہیں پیار نہ ہو جائے کی ایپیسوڈ 21 کی طرف۔ احتشام گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کنکھیوں سے سارا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت سے دوچار تھا کہ وہ لڑکی جو دیکھنے میں بہت معصوم سی اور قدرے ڈرپوک بھی لگتی تھی، لیکن وہ حقیقت میں اتنی جرت مندی کا مظاہرہ بھی کر سکتی ہے، اور کتنے روپ ہیں اس لڑکی کے۔ احتشام سوچ رہا تھا جب سارا، جو کہ اپنے موبائل پر مصروف تھی، احتشام کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ سارا اسے یوں دیکھتے ہوئے پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ تم اس قدر بہادر ہو، مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، بلکہ میں تو تمہیں ڈرپوک سی لڑکی سمجھ رہا تھا۔ لیکن جس طرح تم نے سچویشن کو ہینڈل کیا، ویری امپریسو۔ احتشام نے حیرت میں ڈوبے ہوئے اس کی جرت مندی کو داد دی۔ ڈرتی ورتی نہیں ہوں میں کسی سے بھی، میں تو ایسے ہی ہوں۔ وہ تو بس ماما نے پاکستان آتے ہوئے سمجھایا کہ یہاں مجھے خالص مشرقی لڑکیوں کی طرح رہنا ہے۔ آقا جان اور سب فیملی کو بے باک لڑکیاں پسند نہیں، تو بس اسی ڈھنگ سے جینے لگی، اور جو خصوصیات ماما نے ازبر کروائی تھیں۔ لیکن جب سے اینی سے بات کرنا شروع کی ہے، مانو زندگی میں وہ پہلے والی سارا اور تھرل لوٹ آیا ہے۔ سو ڈرتی نہیں ہوں کسی سے بھی، بس کچھ لوگوں سے عاجز ہوں، اور ان کی گفتگو سے بھی۔ بات کے اختتام پر سارا نے کنکھیوں سے احتشام کو دیکھا۔ اچھا، مطلب وہ معصوم سارا ڈپلیکیٹ تھی، اور یہ ہیں اصل سارا سلطان۔ آج کل تم حیرت کے جھٹکے جس رفتار سے دے رہی ہو، شکر ہے کہ میں ایک مضبوط اعصاب رکھنے والا انسان ہوں، کوئی اور تو یہ جھٹکے سہ بھی نہیں پاتا۔ یہ انکشافات جب مسٹر احمد آغا پہ ہوں گے تو کیا حال ہوگا اس بیچارے کا۔ ویسے کس ہستی سے عاجز ہیں، بتانا پسند کریں گی آپ؟ احتشام نے لفظ اچھا پہ زور دینے کے بعد اس کے انکشاف پہ حیران ہوتے ہوئے نیا سوال کر ڈالا۔ اسے بیچارہ کہہ کر اب لفظ بیچارے کی توہین تو نہ کریں نا پلیز۔ اور رہی دوسری بات، تو کچھ باتیں راز ہی رکھنی چاہیے، ورنہ مضر صحت ثابت ہو سکتی ہیں۔ سارا نے مسکراہٹ دبائی۔ اب یہ مضر صحت کا اشارہ کس طرف ہے؟ پوچھنے والے کے لیے یا بتانے والے کے لیے؟ احتشام نے پھر سے معصومانہ انداز میں پوچھا تو وہ دب گئی۔ اب اتنے معصوم بھی نہ بنے مسٹر کھڑوس صاحب، سب جانتی ہوں میں آپ کی اداکاریاں۔ سارا منمنائی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اونچی آواز میں بات کرو۔ میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو بھی گھر والوں کی کالز آئی ہیں؟ میرے نمبر پہ ماما اور بابا کی کافی کالز آ چکی ہیں، پریشان ہوں گے وہ لوگ۔ سارا نے بات بدلتے ہوئے موبائل پر نگاہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ سارا کے سوال پہ احتشام نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا تو وہ سوئچ آف تھا۔ یہ تو آف پڑا ہوا ہے، اب پتہ نہیں بیٹری ڈیڈ ہے یا ان ونڈو کی مہربانی سے بند ہے۔ خیر تم کال کر کے بتا دو نا کہ ہمیں سیلون میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی، ہم تھوڑی دیر تک گھر پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ لوگ مزید پریشان نہ ہوں۔ احتشام نے اپنا موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے سارا سے کہا، اوکے میں ماما کو کال کر دیتی ہوں۔ احتشام کے کہنے پہ سارا نے کال کر کے وہی کہا جو اس نے کہنے کو کہا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھنی تھی مجھے تم سے، احتشام نے کال بند ہوتے ہی سوال کیا۔ واہ، آج ایسی کون سی بات کرنی ہے جس کے لیے آپ کو اجازت چاہیے؟ ورنہ یہ آپ کا شیوا تو نہیں ہے، آپ کے تو جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جو جی میں آتا ہے پوچھ لیتے ہیں۔ سارا اس کے اجازت نامے پہ حیران ہوتے ہوئے کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ اچھا، یعنی تمہارے خیال میں کچھ بھی بول دیتا ہوں؟ احتشام سوال بھول کر اس کی بات کو لے کر بیٹھ گیا۔ کیوں، آپ کو کوئی شک ہے میری بات پہ کہ میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ کیوں ایسا نہیں کرتے آپ؟ باقیوں کا تو پتہ نہیں، البتہ میرے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا تو جیسے فرض ہو آپ پر۔ سارا اس کے اچھے موڈ کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اور پتہ نہیں میں بات کرنے سے پہلے ہر بار یہ کیوں بھول جاتا ہوں کہ سامنے ایک بدتمیز لڑکی ہے جس اب تک میں بہت تمیز دار اور معصوم سمجھتا رہا۔ احتشام اس کی بات پہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔
सो तो मैं हूँ, आपको बता भी चुकी हूँ। वैसे अच्छा हुआ, जिस गलत फहमी का शिकार आप थे वो जल्द ही दूर हो गई, क्योंकि गलत फहमियाँ जितनी तवील हों, हकीकत मालूम होने पर उतना ही सदमा पहुँचाती हैं। सारा ने बजाय शर्मिंदा होने के ढिठाई से जवाब देते हुए अप्रोच गाया। ना तो तुम शाजिया फुप्पो पर गई हो, ना ही सुल्तान अंकल पर। पता नहीं किस पर चली गई हो। हमारे ख़ानदान में कोई भी इस कदर बदतमीज़ नहीं है। एहतशाम उसकी ज़बान दराजी के बाद गोया हुआ। हाँ, तो आप क्या खुद को मुएरा आंटी और सरमद मामू जैसा समझते हैं? वो तो दूसरों की ज़िंदगियों या मामलात में ना घुसते हैं, ना ही टांग अड़ाते हैं। तो आप किस पर गए हैं? पहले आप बताएं, फिर मैं भी बता दूंगी। सारा ने भी अपनी बेइज्जती के जवाब में ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। तुम्हें किससे कहा मैं उन जैसा नहीं हूँ? एहतशाम ने तेवरी चढ़ाई। मैं कह रही हूँ ना, भला मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत? अपने तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रही हूँ कि आप तो सड़ियल मिजाज हैं, जबकि वो दोनों बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं, बल्कि वो दोनों तो निहायत खुश मिजाज तबीयत के मालिक हैं। पता नहीं आप किस पर चले गए हैं, जबकि घर में तो किसी की भी सड़ियल तबीयत नहीं है। सारा ने शरारत भरी मुस्कुराहट उछाली। वैसे तुम्हें शर्म आ रही है कि मैं उम्र में तुमसे खासा बड़ा हूँ और तुम ऐसे फ्री हो रही हो मुझसे? एहतशाम ने भविष्य उकेड़ उस पर निगाह की। ओह, जब आप मेरे मुतालिक कुछ भी बोलें, कुछ भी कहे, वो बदतमीज़ी नहीं, और मैं बात करूं तो बात बदतमीज़ी और फ्री होने तक आ जाती है। वाह, ये कहाँ का इंसाफ है। जाएं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। सारा मुंह बसोरे विंड स्क्रीन के पार देखने लगी। बेवकूफ़ लड़की, मैं खासा बड़ा हूँ तुमसे, सो मैं कर सकता हूँ ऐसे बात, लेकिन तुम छोटी हो, सो कुछ आदाब होते हैं ना। अपनी दोस्त एनी के मशवरों पे अमल ज़रूर करो, लेकिन फुप्पो के असबर करवाए गए सबक को भी मत भूलो। खैर, अभी तो मिस्टर खड़ूस वाली बात भी पूछनी है मुझे तुमसे। जल्दी बताओ, कौन है वो? एहतशाम ने उसके मुंह फुलाने पे बात ही बदल डाली। आज उसका मूड अच्छा था, इसीलिए वो सख्त लहजे से गुरेज कर रहा था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर सारा ने अच्छी खासी भड़ास निकाली थी। मुझे नहीं बताना कुछ भी। सारा ने निगाहें वहीं मरकूज़ किए हुए मुख्तसरन जवाब दिया। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, ये बताओ, मुझसे तो डरती हो, लेकिन उन गुंडों से डर नहीं लगा तुम्हें? और सारा प्लान तुम्हारे नन्हे से दिमाग में कैसे आया? एहतशाम भी चुप नहीं बैठ सकता था, लिहाजा सब बातें छोड़ छाड़ उसे फिर से वो सवाल याद आ गया था जो कुछ देर कबल वो पूछने वाला था। बस, मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी जिसमें लड़की ऐसी ही ट्रिक्स इस्तेमाल करके गुंडों से अकेले ही निपट लेती है। फिर मेरे साथ तो आप भी थे, एक से भले दो, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कर सकती। अच्छी चीज़ सीखनी और अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए। सो मौका भी था, महल भी था, तो सोचा आजमाते हैं, हमारा तजुर्बा कहाँ तक कामयाब होता है। और लगे हाथों फिर एनी का एक डायलॉग भी याद आया, तो बस हिम्मत बन गई और दिमाग लड़ाया, फिर प्लान बनाया। आपको किसने कहा कि मैं आपसे डरती हूँ? सारा ने जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल दागा। उफ़, तुमने एक फिल्म में देखा और उसको हकीकी ज़िंदगी में अप्लाई कर डाला। अगर इस ड्राइवर की गन में गोलियां होती तो जानती हो ना क्या होता। अपने साथ साथ मुझे भी मरवाती, बेवकूफ़ लड़की। और अच्छा, मुझसे डरती नहीं हो तो तुम्हारा मेरे हर सवाल पर हकलाना डरने की ही अलामत है। अगर ऐसा नहीं तो फिर इस हकलाने की वजह? एहतशाम जिस पॉइंट को लेकर समझता था कि वो उससे डरती है, वो सामने रख दिया। बस हमारी किस्मत अच्छी थी ना, बच गए। और मैं कब हकलाती हूँ? बस कभी कभी ज़बान लर्जिश का शिकार हो ही जाती है, जब सामने मुनकर नकीर हो तो फिर। सारा ने बोलते बोलते दांतों तले ज़बान दबाए आंखें सख्ती से मूंद दी, जब उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई है। ला हौला वला कुव्वत, एहतशाम उसे देखकर संजीदगी से बोला। मुनकर नकीर? एहतशाम ने उसे देखकर तेवरी चढ़ाई। सवालनामा जो लेकर बैठ जाते हैं तो? सारा ने धीमे लहजे में ये बात कहकर उसे बावर करवाया कि वो उससे कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब करता है। ठीक है, आइंदा की बात मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। खुश? एहतशाम ने उसकी बात सुनकर संजीदगी से अपना फैसला सुना डाला। शुक्र है, सारा के मुंह से बेख्तियार निकला, जिस पर वो खिफ़्फ़त से निगाहें झुका गई, जबकि एहतशाम पहलू बदल कर रह गया। बाकी का सफ़र निहायत खामोशी में गुजरा। वो लोग घर पहुंचे तो सभी मुंतज़िर थे। मेहमान भी आ चुके थे। अंदर तो काफ़ी पुररौनक समा था।
चहल पहल, कहकों की गूंज, निस्वानी खूबसूरत आवाज़ें और उनकी हंसी की खनक बाहर तक आ रही थी। लॉन में ही तमाम इंतजामात किए गए थे। खूबसूरत लाइटों और खमखमों से सजा हुआ लॉन और भी खूबसूरत लग रहा था। सारा गाड़ी से उतरती धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई तो सभी उसकी बलाएं लेने लगे, जबकि एहतशाम सबसे मिलने के बाद रेडी होने के लिए अपने कमरे की तरफ चला गया। मेहमानों से मिलने के बाद वो आशा और अपने मुश्तरका कमरे में आ गई। आशा उतरी हुई सूरत लेकर सामने बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठी हुई थी। अरे, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सारा ने आशा को देखते ही सवाल किया। आज मेरा मायो है ना, तो इसके लिए तैयार क्या होना। बुआ कहती हैं कि शादी से पहले तैयार नहीं होते, शादी वाले दिन तैयार हो तो फिर ज़्यादा रूप आता है। आशा ने बात बनाई। तुम भी ना, पहले ऐसा होता होगा, लेकिन अब कहाँ ऐसा होता है। लड़कियां तो रोज़ ही तैयार हो तो हर दिन नया रूप ही आता है। सो उठो और तैयार हो जाओ। इनफैक्ट मैं तो चाहती थी कि तुम मेरे साथ सैलून चलो, लेकिन तुम सो रही थी इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम हफ्ता पहले ही सैलून जाना स्टार्ट कर दोगी। आजकल लड़कियां ऐसा ही तो करती हैं, महीने भर पहले ही दौड़ने लगी होती हैं। और तुम हो कि इस हुजरे से बाहर ही नहीं निकलती। अंदर बंद रह रह के क्या हालत बनाई हुई है। कोई चार्म, कोई खुशी नहीं छलक रही तुम्हारे चेहरे से बिल्कुल भी। सारा कई रोज से उसे यूं ही पड़े देखकर जच हो गई थी। उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि इतने अहम दिन हैं उसकी ज़िंदगी के, और वो है कि खामोशी से अंदर पड़ी रहती है। ख़वातीन तो अपने कामों में मगन हैं, लेकिन आशा को खुद अपना ख्याल रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। सारा की बातें सुनकर उसने आंखों में उतरती नमी को पीछे धकेलते हुए बात बदली। अब उसे क्या बताती कि उसे क्या रोग लगा हुआ है। क्या बात है आशा? जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, तुम्हारे चेहरे पे कोई रंग नहीं, कोई रौनक नहीं। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? सारा उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसकी आंखों में नमी उतरती देखकर बोली, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ और खुशकिस्मत भी कि एहतशाम जैसा शख्स मेरा हमसफ़र होगा। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। बात के दौरान आशा की आंखें छलकने लगी थीं, जबकि सारा एहतशाम की तारीफ सुनकर सदमे से बेहोश होने को थी। बस जब्त करके रह गई, क्योंकि वो एहतशाम के बारे में आशा को बदगुमान नहीं करना चाहती थी। आशा कहना चाहती थी कि वो अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन वो नहीं कह सकती थी। वो अपने जुर्म का इकरार कभी भी नहीं कर सकती थी, और सारा के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। किस मुंह से करती कि वो उसके होने वाले शौहर के साथ। ये सोचकर उसके आंसू में रवानी आ गई थी। तो फिर क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो आजकल? कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। सारा ने आशा के पास बैठते हुए मोहब्बत से उसका हाथ थामे हुए पूछा। कुछ नहीं, बस अम्मा अब्बा आजकल बहुत ज़्यादा याद आने लगे हैं। वैसे भी याद आते थे, लेकिन इस मौके पर उनकी कमी ज़्यादा महसूस करने लगी हूँ। आशा ने सारा के हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखते हुए रूहानी लहजे में कहा, देखो, इस तरह उनकी रूह को भी तकलीफ़ पहुँचेगी। उनकी दुआएं तो तुम्हारे साथ हैं ना, और हम सब भी तो तुम्हारे साथ हैं। फिर ऐसी बातें जहन में मत लाया करो। चलो उठो, फ्रेश होकर चेंज कर लो। बाहर मेहमान आ चुके हैं और सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। सारा ने उसका हौसला बढ़ाया। सारा के कहने पे आशा भी दिल से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि सारा का अपना दिल आने वाले वक्त को लेकर अनजाने खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन उसे उम्मीद की डोर को नहीं छोड़ना था। आशा ने भी चेंज किया और सारा के कहने पर लिपस्टिक लगा ली थी। कुछ ही देर में सब लॉन में जमा थे, सिवाय सारा, आशा और कुछ कज़न्स के। अहमद भी तैयार होकर मेहमानों के दरमियान मौजूद था। अब मौलवी साहब का इंतजार हो रहा था। सारा की परेशानी जब हद से बढ़ी तो उसने ज़ेबा को भेजा कि बीजान को बुला लाए। बीजान, ये सब क्या हो रहा है? उसने बीजान को अकेले में बात करने के लिए कहा और अब बीजान से सवाल करने लगी। क्या हुआ है लड़की? हवास पे काबू रखो। जब हमने तुमसे कहा है कि ये निकाह नहीं होगा तो तसल्ली रखो कि नहीं होगा। बीजान ने दबे दबे अल्फाज में सरजश की कि उसके रवैये और तासुरात से वो दूसरों को शक में भी मुब्तला कर सकती है। लेकिन कैसे? सारा ने पूछा। तुम मुतमईन रहो, ये मेरा काम है और मुझे पता है कैसे करना है। तुम सबसे मिलो जुलो, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखो ताकि किसी को भनक ना पड़े। बीजान उसे समझाते हुए फिर से बाहर की तरफ आ गई थी।
جبکہ وہ بھی لمبا سانس لبوں سے خارج کرتی پیچھے صوفے پہ بیٹھے پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی کہ جانے آنے والی ساتیں کیا لے کر آئیں۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن کہانی بھی باقی ہے۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے یہ تو نئی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ کیا سارا اور احمد یہ نکاح کر پائیں گے یا نانی جان بی جان اس شادی کو روکنے میں ہو پائیں گی کامیاب؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے نئے ایپیسوڈ کا، جو بہت جلد ہم لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔